these are the questions which I have given you for solving. That what is, give the output for the following and write how many times loop will execute, that how many times that loop is going to be executed. That is only you have to write, that number of the loop and what will be the output. Okay, now as we have done in the for loop, first step is initialization, right? पहला step initialization का, second step test condition, दूसरा स्टेप टेस्ट कंडीशन का. इफ द गिवन टेस्ट कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू, because for loop is the entry control loop, that's why it checks the test condition first, then it's going into the body of the loop, right? Then I की वैल्यू कितनी है 1, तो see 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. Okay, this condition will be true, then it will go in the body of loop. If I equal 5 है क्या, 1 equal 5 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा. क्या एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln I. तो I की वैल्यू क्या है 1, तो इट्स गोइंग टू डिस्प्ले 1. ओके, फिर ln है, देखो यहाँ पर प्रिंट ln मीन्स इट विल कम इनटू द नेक्स्ट लाइन. ओके, it will, your cursor will come in the next line. Okay, then after that it will go to the fourth step, that is increment decrement, means I plus plus. तो I की वैल्यू कितनी हो गई 2. फिर जब I की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पे क्या कंडीशन फॉर्म हुई, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, अगेन कंडीशन विल बी ट्रू. ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में जाएगा तो 2 इक्वल 5, कंडीशन फॉल्स, कंटिन्यू नहीं होगा. ये कंटिन्यू कब होगा, मींस 1 2 3 4 तक तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होते जाएगा. ओके, आउटपुट विल बी 1 2 3 4. ओके, देन फिर 5 पर जब आएगा तो I इक्वल 5, कंडीशन विल बी ट्रू, तो इट विल एग्जीक्यूट कंटिन्यू. कंटिन्यू इज व्हाट, इट इज द जंप स्टेटमेंट. इफ यू रिमेंबर, मैं बता देती हूँ फिर से, जंप स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू, ये बताती हूँ, शायद से ये पहले आई डोंट नो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू और नॉट. jump statement, okay, jump statement is the continue. What is the meaning of this continue? If it is showing the continue, तो एग्जीक्यूशन उसके नीचे वाली लाइन में नहीं जाएगा, सीधे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे पहुंच जाएगा. मीन्स इट्स गोइंग टू स्किप एंड ऑल द स्टेटमेंट्स इन द गिवन ब्लॉक and it forces to the early iteration. Jump statement used to force the early iteration. Early iteration means it will skip rest of the statements given in the block and send to the execution to the increment or decrement part, means updation part. तो अभी I की वैल्यू 5 जब होगी continue, it means it will not come to the next line, directly it's going to do the अपडेशन. जब अपडेशन हो जाता है तो I की वैल्यू हो गई 6. ओके, देन फिर I की वैल्यू कंडीशन ट्रू, 6 लेस देन इक्वल्स टू 10, देन I इक्वल 5 फॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा 6. ओके, so output will be 6, then 7, then 8, then 9, then 10. No, see, less than 10. Less than 10 means what? जब I की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, एंड फॉर लूप इज द एंट्री कंट्रोल लूप, तो वो बाहर आ जाएगा. तो इसलिए आउटपुट विल बी 1 2 3 4, माइंड इट, 4 6 7 8 9. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर लूप कितने बार चला, 9 टाइम. 1 2 3 4 5 तो है ही नहीं, 6 मीन्स 5 टाइम, 6 7 8 8 9. नो, loop will execute 9 times. Loop will execute 9 times. Why? अभी 9 तो प्रिंट ही नहीं हुए, 1 2 3 4, देन 5 प्रिंट नहीं हुआ, 6 7 8 9. सो व्हाट, लूप चलने का मतलब ये जो इटरेशन हुई है कितने बार हुई है, वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट. ओके, मगर लूप तो 9 टाइम चला है.
So this loop will going to be executed 9 times. Okay, see the output execution for this program. I'll give you the Control C, and here I'm doing. Acha hai already. This is the first one program which we are going to execute. See the execution of this program. Loop close, main close, and here class close. Compile, then execute. Void main 1 2 3 4. देखो 5 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे i की वैल्यू 5 हुई कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई. कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब ये होता है इट विल स्कीप ऑल दी पार्ट्स, all the statements after this and send to the execution to the iterations updation part. ये सब मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है. Same. Okay, understood? Okay, now the second one. Second one question. Int m equals to 2, n equals to 15, right? Then int I equals to 1, I less than 5, then I plus plus. So value of I is 1. So 1 less than 5. Condition true. Condition true हुई तो अंदर आ गया लूप में. ओके, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? m प्लस n. m की वैल्यू मतलब m है यहाँ पर 2 प्लस n, n is 15. ओके, इट मीन्स 17. n की वैल्यू कितनी हो गई? 17. बट हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? सी दैट I ओनली. ओके, सो और वो भी ln में, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 2 3 4, ओनली 4. अभी इससे मतलब ही नहीं है, आउटपुट में आएगा ही नहीं, बिकॉज आई डिडंट राइट ओवर हियर एम और एन और व्हाट, है ना. कंफ्यूज करने के लिए, टाइम वेस्ट कराने के लिए ये क्वेश्चन है कि एडिशन करते बैठेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, वापस से एन की वैल्यू इसमें लेंगे और ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे. हमें क्या डिस्प्ले कराना है? ओनली आई और लेस देन 5 तक. तो 1 2 3 4 5. एंड हाउ मेनी टाइम लूप एग्जीक्यूटिंग? 1 2 3 4. 4 टाइम्स ओनली. 4 times. Loop will execute 4 times. Okay, understood? See that execution of this. Int m equals to 2, n equals to 15, system.out.print I. Method close, class close. Now compile and see that. One, two, three, 4. How many time loop execute? 4 time. कुछ नहीं करना था, सिर्फ प्रोग्राम देख के आई प्रिंट करना. आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी होती है वो प्रिंट कर लेनी, नथिंग एल्स. ओके, आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन. थर्ड वाज int I equals to 5, j, int j, j is nothing. अभी j की वैल्यू j equals to I, it means what? j equals to I means what? j equals to what is the value of I? 5. तो j की वैल्यू कितनी हो गई? 5. ओके, देन 5 लेस देन इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी है? 5. सी दैट लेस देन तो नहीं है मगर इक्वल तो है. ओके, लेस देन नहीं है बट इक्वल है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई. बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल कम इनटू दिस पार्ट. So it's going to display आउटपुट क्या आएगा? I की वैल्यू 5. सी दैट प्रिंट ln नहीं है,
ओके, माइंड इट, प्रिंट एलन नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, फ्लो में लिख देते हैं प्रिंट एलन है ना, है या नहीं देखते ही नहीं, और कर्सर को नीचे लाइन में मूव करवा लेते हैं। नो, कर्सर विल रिमेन सेम इन दिस लाइन बिकॉज प्रिंट एलन नहीं है। तो आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। देन आफ्टर दैट इट विल कम टू द बॉडी ऑफ लूप। यहाँ खत्म हो गया है, देखो ये कर्ली ब्रेजेस, लूप के कर्ली ब्रेजेस यहाँ पे खत्म हो गए, तो ये लूप क्लोज यहीं हो गया है। ध्यान दो, ये लूप यहीं क्लोज हो गया है। तो अर्ली इटरेशन पे आएगा, अपडेशन पे आया, जे की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, अभी जे की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो तुम्हारी कंडीशन क्या बनेगी 6 लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है। व्हेन कंडीशन इज फॉल्स तो इट विल नॉट गो इनटू द बॉडी ऑफ लूप, ये सीधे ही बॉडी ऑफ लूप के बाहर आ जाएगा। तो बॉडी ऑफ लूप के बाहर अब कोई स्टेटमेंट अगर लिखी है तो वो प्रिंट होगी ना, होगी या नहीं होगी। देखो जे की वैल्यू अपडेट हुई है मगर आई की नहीं, आई की वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ पर कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं हुआ है, अगेन 5, सो योर आउटपुट विल बी 55, नहीं 5 आउटपुट विल बी 5 एक 5 तो इसका प्रिंट का आय का, देन एक लूप के बाहर की स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। देन कर्सर विल मूव इनटू द नेक्स्ट लाइन, ओके, एंड देन हाउ मेनी टाइम लूप एग्जीक्यूट्स, only one time loop will execute. ओके, अंडरस्टूड। फिर से समझो, देखो ये कर्ली ब्रेसेस जहां बंद हो गए वही लूप क्लोज हो गया, ओके, एंड दिस इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, ये लूप के बाहर की स्टेटमेंट है जो कि सबसे लास्ट में लूप क्लोज होने के बाद एग्जीक्यूट होगी, अंडरस्टूड। Okay, so output will be 55. We can check it. We are executing it. Write all these output with me only. Then here. Yes, ma'am. Here I'm pasting it. See that. We'll execute it. Then int I, this, yes. This is loop close, method close, class close, one braces is extra. Now these are the comment only. See that. Compile, execute, output. See that 55. It is not 55 actually, it is 55. एक बार का आए then दूसरे बार का आए. Okay. Now the fourth one. See that. I is 1 less than 10. Condition true हो गई. 1 less than 10. Okay, then cursor will move in the next line. I 55 नहीं है. It means ये देखो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे सीधे आई प्रिंट होगा, जैसे कंटिन्यू में हुआ था ना सेम वैसे ही 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 तक तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मगर जैसे ही आई की वैल्यू जब 5 हो गई, ओके, सी दैट, जब 5 हो गई ना तो 5 इक्वल 5 कंडीशन ट्रू है, then break statement is going to be executed. Now what is the break statement? It is very important. Give the question will come like that. Give the difference between continue and the break statement. So break is also the jump statement. Write it over there. Jump statement. Break is the jump statement. अब break का तो यूज पता है ना, स्विच में किया था, if you remember, used to terminate the execution. ओके, यूज टू टर्मिनेट दी एग्जीक्यूशन। तो अभी अगर आई की वैल्यू 5 हो गई और ब्रेक मिल गया तो इट विल टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन, मींस डायरेक्टली इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। स्विच में भी ऐसे होता था ना, जैसे ही ब्रेक मिल जाता था स्विच के ब्लॉक से बाहर आ जाता एग्जीक्यूशन, सेम ऐसे ही ब्रेक जैसे ही मिला तो स्विच के यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो आउटपुट कितना हुआ 1 2 3 4। देन हाउ मेनी टाइम लूप एग्जीक्यूट्स, ओनली 4 टाइम। Loop will execute
4 time only. Loop will execute 4 time only. Understood? See that ये कंपैरिजन का क्वेश्चन भी आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड द कंटिन्यू. ऐसे आउटपुट में भी आ सकता है. देखो जब कंटिन्यू था तो सिर्फ वो पर्टिकुलर 5 प्रिंट नहीं हुआ था, मगर यहाँ पे टिल द 4 ही प्रिंट होगा, क्योंकि जैसे 5 मिला, कंडीशन ट्रू हुई और ये ब्रेक होकर के जंप स्टेटमेंट में आ गया. ओके, नाउ सी द आउटपुट फॉर दिस. or int I, this is for close, method close, and this is class close. देखते हैं, compile. Okay, this is the compile. I equal equal 5. Execute. See that 1 2 3 4 only, because break is the jump statement used to terminate the execution. I hope it is clear now. You understood that how to give the output, how to do the dry run. Compile कैसे करना है, dry run कैसे करना है.